مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے سبحان۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ ابھی ہمارا بچوں کا کافی پروگرام باقی ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی جو پرانی روایات رہی ہیں آخر تک دل جمی کے ساتھ میں بیٹھنا اور بچوں کے پروگرام کو سننا۔ بچوں کی دستار بندی کا بھی مرحلہ آئے گا، اس سے پہلے پورے سال کی آمد و خرچ کا حساب اور تعلیمی رپورٹ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضرت مولانا شکیل صاحب آنے والے ہیں اور مفتی طالب صاحب ہمارے درمیان میں آ چکے ہیں، ان کا بھی پرمغز خطاب ہونا ہے۔ حضرات، خطابت یعنی تقریر یہ زبان کی معراج اور معافی ضمیر کے اظہار کا وسیلہ اور اعجاز ہے۔ خطیب جو کچھ کہتا ہے اور جس طرح کہتا ہے، جس گہرائی اور گیرائی سے وہ بولتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سامعین کے دلوں کو مسحور کرتے چلے جاتے ہیں۔ خطیب دراصل سماعتوں کی مملکت کا وہ بادشاہ ہوتا ہے جو سامعین کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اسی سرزمین سے اٹھنے والے ایک نوجوان فاضل مقرر حضرت مولانا مفتی شعیب صاحب، جو دارالعلوم حامدیہ کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں اور گاؤں کے اوپر، محلے کے اوپر بے انتہا کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ موقع بھی ہے، محل بھی ہے، تشریف لائیں اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ یہ لڑکیاں یہاں سے چلی جائیں، لڑکیاں سب وہاں چلو، پردے کے پیچھے کھڑے ہو، یہاں سے لڑکیاں ساری کھڑی ہو جاؤ، پردے کے پیچھے جاؤ۔ آواز نہیں آ رہی؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم طریقت بجز خدمت خلق نیست ز تسبیح و سجاد و دلق نیست۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور سر فہرست
ہم سب کے بڑے محسن و کرم فرما حضرت مولانا افتخار صاحب استاذ محترم کی محبت اور شفقتیں آپ کی اجازت سے جو آپ نے سکھایا ہے پڑھایا ہے وہ کچھ سبق حضرت نے جو سکھایا وہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت مولانا احمد صاحب جو ہمارے گاؤں کے بڑے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ حضرت بھی اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح حضرت مفتی افتخار صاحب جو اس مدرسے کی فکر اور اس مدرسے کے لیے جہد مسلسل کرنے والے ایک مرد مجاہد ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب شروعات میں اس مدرسے کا نظام چلا تو میں خادم الاسلام میں پڑھتا تھا، پروگرام ہوا تو اس پروگرام میں آنا ہوا، تقریر ہوئی، جیسے کہ بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کیا، نظام چلتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ ایک عظیم ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و فن کے میدان میں بڑا کمال عطا فرمایا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے، بہت ساری چیزیں وہ کہ جو آنے والے وقت میں ظاہر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، ان چیزوں کا القاء ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی افتخار صاحب اللہ آپ کی عمر کو دراز فرمائے، صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے، اور واقعی بڑی کڑھن اور بڑے درد کے ساتھ آپ حضرات کی اس بستی کی اس گاؤں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ مختصر سا نظام تھا، ایک بڑا جمع غفیر یہاں اس وقت میں اساتذہ کرام کا ہے، بہت سارے درجات چل رہے ہیں، ہندی انگلش کا بہت معیاری نظام، بچوں کا آپ نے پروگرام سنا، تو آپ ادارے کے لیے اور یہ عظیم شخصیات جو آپ کے سامنے اس وقت میں جلوہ افروز ہیں ان کے لیے دعا فرماتے رہا کریں کہ اللہ رب العزت ان ہمارے اکابر بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، یہ میرا اپنا گاؤں ہے، اور اپنے گاؤں والوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرنے کا موقع ملے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے اور بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور مفتی صاحب کی محبت اور پیار سے آپ حضرات کے درمیان کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مفتی صاحب بڑا پیار فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپس میں گفت و شنید ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور کچھ کہنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، کہ آج آپ حضرات سے دل کی بات کروں اور دل کا دکھڑا آپ حضرات کو سناؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں ایسے عنوان پر گفتگو کی جائے جس عنوان کی آج ہمارے سماج کو
मुआशरे को जरूरत है, और वो चीज है खिदमत खल्क, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। मैंने फारसी का एक शेर आपके सामने पढ़ा है जिसमें बतलाया कि तसव्वुफ, बुजुर्गी, तरीकत इंसान को खिदमत खल्क से हासिल होती है। तहज्जुद पढ़ते रहे, नवाफिल पढ़ते रहे और दूसरे नेक आमाल करते रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन इंसान के दिल में लोगों की सेवा करने का, लोगों की खिदमत करने का अगर अल्लाह ने जज्बा पैदा फरमाया है तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत है कि हाँ, कोई मेरे पास में जरूरतमंद आ जाए, मैं जिस लायक हूं, जिस काबिल हूं, मैं उसकी जरूरत पूरी करूं। माल अगर मेरे पास में है तो माल के जरिए से करूं, मैं अपने टेलीफोन के जरिए से अगर किसी का काम करा सकता हूं तो मैं करा दूं, या किसी के साथ अगर मुझे जाने की जरूरत पड़े तो मैं किसी के साथ चला जाऊं। तो आप और हम ये समझते होंगे कि ये अदना काम है। मेरे भाइयों, नहीं, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की 40 साल जिंदगी जिसमें आपने नमाज का हुक्म नहीं दिया, आपने ज़कात का हुक्म नहीं दिया, आपने रोजे रखने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की 40 साल जिंदगी खिदमत खल्क में गुजरी है। आपने भूखों को खाना खिलाया, जरूरतमंदों का सहारा आप बने, यतीमों का सहारा बने, बेवाओं का सहारा बने। आपकी 40 साल जिंदगी, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की 40 साल जिंदगी मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, खिदमत खल्क में गुजरी है, लोगों की सेवा में गुजरी है। आपने 40 साल से पहले लोगों को किसी चीज का, नमाज, रोजे, हज का हुक्म नहीं दिया था। क्यों? इसलिए कि नमाज रोजे की फर्जियत अभी नहीं आई थी। आपने माहौल को हमवार किया, आप जरूरत में काम आए, लोगों का सहारा बने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपके ताल्लुकात आपको दिए हैं, आपके ताल्लुकात की बुनियाद पर किसी जरूरतमंद का काम हो जाए, हल्का मत जानिए। हो सकता है आपकी जिंदगी के तमाम काम एक तरफ, आपकी जिंदगी की तमाम वो इबादतें जो आप रात की तारीकी और दिन के उजाले में कर रहे हैं, मेरे भाइयों, एक तरफ, लेकिन आप अगर किसी के काम आ गए, किसी की जरूरत को आपने पूरा कर दिया, किसी का आप सहारा बन गए, तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल की वजह से अल्लाह जन्नत का फैसला फरमा दे। सहाबा की जिंदगी उठाकर देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मुमिनीन है। रात की तारीकी में एक नाबीना के घर पर पहुंचते हैं, उसकी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। पानी भरने की जरूरत पड़ती तो पानी भरते, जो उस नाबीना बूढ़ी माँ को जरूरत होती, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको पूरी करके एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सोचा कि इस बूढ़ी माँ की जरूरत कौन पूरी करता है। आप एक जगह छुप जाते हैं, रात की तारीकी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगे पैर उस बूढ़ी माँ के घर पहुंचते, पानी भरने की जरूरत पड़ती तो पानी भर देते, और दूसरी खिदमत की जरूरत पड़ती तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
पूरी कर देते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि आप फारिग होकर आए और आपके पैरों में जूते चप्पल नहीं, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मालूम किया अमीरुल मोमिनीन आप रात की तारीकी में आपके कदमों में न जूते हैं न चप्पल हैं, ये क्या माजरा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि मैं जूती चप्पल मेरे पैर में इसलिए नहीं कि मेरी आहट की आवाज किसी की नींद को खराब करने का जरिया न बन जाए, किसी को मालूम न हो जाए, इसलिए मैं रात की तारीकी में बगैर जूते चप्पल के उस बूढ़ी माँ की सेवा और खिदमत कर रहा हूं। मेरे प्यारो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप खलीफा हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक बूढ़ी माँ की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह नीचे उतरिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रात में गश्त फरमा रहे हैं। अब इस वक्त में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, रात में गश्त फरमा रहे हैं। एक खीमा लगा हुआ है, उस खीमे के बाहर एक मुसाफिर परेशान हाल आपको नजर आया। आप उसके पास पहुंचे, क्या आप परेशान क्यों? बताया कि मेरी बीवी मेरी शरीके हयात दर्द ज़ह में मुब्तला है, परेशान है, तकलीफ में मुब्तला है, कोई खातून नहीं कि मेरी शरीके हयात का सहारा बन जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी शरीके हयात को घर पहुंचते हैं, उम्मे कुलसूम को उठाते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, एक खातून तुम्हारी खिदमत चाहती है। आप खीमे में आप अपनी शरीके हयात को खीमे के करीब लाकर छोड़ देते हैं। वो दर्द ज़ह में खातून परेशान थी और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरीके हयात उसकी सेवा उसकी खिदमत के लिए आ जाती है। उस मुसाफिर को मालूम नहीं कि मेरी घरवाली का सहारा बनने वाला, खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखने वाला कौन है। मेरे भाइयों, जब अंदर बच्चे की विलादत हो जाती है, बच्चे की पैदाइश हो जाती है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरीके हयात अंदर से बाहर आती हैं और आने के बाद कहा अमीरुल मोमिनीन आपके साथी के और आपके दोस्त के यहाँ बच्चे की विलादत हो जाती है। जब वो नौजवान इस बात को सुनता है और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरी खिदमत कर रहे हैं, तो वो कहता है अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गुस्ताखी हो गई है। लेकिन वो वक्त का इमाम, वो उस वक्त में जो अमीरुल मोमिनीन था, वो क्या कहता है? कहते हैं कि ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा हक है जिसको मैं निभा रहा हूं। आप परेशान न हो, आप कल मेरे पास में आए, बैतुल माल से तुम्हारा वजीफा जारी कर दिया जाएगा। मेरे प्यारो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत कर रहे हैं, खिदमत का जज्बा अपने दिल में पैदा किए हुए हैं। तो हमें अपने भाइयों की, अपने दोस्तों अहबाब की खिदमत का जज्बा अपने सीने में रखना है। हर इंसान अपनी फिक्र में है, अपनी औलाद की फिक्र में है, मेरा मकान बन जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए, मेरी बच्चों की और बच्चियों की शादियां अच्छी हो जाएं और मेरे बच्चे आला तालीम हासिल कर लें। शौक से कराइए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन मेरे भाइयों, यतीम, बेवा, जरूरतमंद आपके इलाके, आपकी बस्ती, आपके महल्ले, आपके गांव के अंदर है, तो इस्लाम सिखाता है, कुरान सिखाता है, नबी बताते हैं कि काम ये है कि आप अपने साथ, अपनी जरूरत के साथ गैरों की जरूरत का ख्याल फरमाइए। खिदमत जिस अंदाज से भी हो जाए, जिस पहलू से हो जाए,
اس کو غنیمت جانیے اور غنیمت سمجھ کے کیجیے اور یہ جان کر کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر ملے گا، بڑا ثواب ملے گا۔ تو سنو، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ، میرے پیارو، آپ کوئی چیز تحریر فرما رہے تھے، پہلے قلم چلتے تھے جو لکڑی کے قلم ہوا کرتے، آپ تحریر فرما رہے ہیں، قلم کو آپ نے لیا، اس قلم کو آپ نے دوات میں داخل کیا، وہاں سے روشنائی آپ نے لی اور روشنائی سے لکھنا چاہتے تھے، لیکن ایک مکھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کے قلم پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ اپنے قلم کو تھام لیتے ہیں، آپ اپنے قلم کو روک دیتے ہیں، اور وہ مکھی کہ جو روشنائی چوسنا چاہتی، بھوکی پیاسی تھی، آپ نے اس روشنائی کو تھاما، اس قلم کو تھاما، اور تھامنے کے بعد اس مکھی نے چوس کر وہ چلی جاتی ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک کسی کو خام نہ دیکھتے ہیں، وہ معلوم کرتا ہے کہ بتائیے آپ پر کیا گزر رہی ہے، کیسی آپ پر گزری؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ معلوم کیا گیا کس عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ آپ نے درس حدیث دیا تھا، آپ فقیہ تھے، آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ کے بہت شاگرد تھے، آپ بڑی خدمت انجام دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا حدیث پڑھانا پسند آیا، آپ کا مسائل بتانا سمجھ آیا۔ بتاؤ کس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرمائی؟ تو سنو میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک بھوکی پیاسی مکھی کو صرف روشنائی چسوا دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، فرمایا اے عبداللہ ابن مبارک، تم نے ایک مکھی کے ساتھ محبت کی ہے، اس نے سلوک کیا ہے، جاؤ، میں نے تمہاری مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے، میں نے تمہاری فقاہت کو نہیں دیکھا ہے، میں نے تمہارے مسائل بتانے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے تمہارے درس حدیث کو نہیں دیکھا ہے، میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ تم نے ایک مرتبہ مکھی کو روشنائی چسائی تھی، میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے تمہارے حق میں مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ آپ انسانوں کی نہیں، مکھی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ چلیے، آپ مشکات شریف کھولیے، مشکات شریف کی روایت حضرت ایک امام الانبیاء نے فرمایا، ایک فاحشہ بدکار عورت وہ کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، کنویں کے قریب ایک کتا موجود جو ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، پیاسا تھا، گارا چاٹ رہا تھا، پانی پینا چاہتا تھا، پانی موجود نہیں تھا، اس کے پاس موجود نہیں۔ اس بدکار فاحشہ عورت کو ترس آیا، رحم آیا، اس نے سوچا کہ یہ کتا پیاسا ہے، اس کو کیوں نہ پانی پلا دیا جائے۔ اپنے پیروں سے خفین نکالے، موزے نکالے چمڑے کے، اور نکال کر اس کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا، اور اس پانی کو اس ہانپتے کانپتے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جو فاحشہ ہے، بدکار ہے، اللہ کے یہاں جس کے حق میں اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے، لیکن رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ میرے پیارے پروردگار عالم نے اس عمل کی وجہ سے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیا کہ جاؤ، تمہارا مقام، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، ایک کتے کے ساتھ۔ اب سنیے دوسری روایت، ایک بلی خاتون نے اپنے گھر میں باندھی، اور باندھنے کے بعد اس کو نہ کھانے کے لیے دیا، نہ پینے کے لیے دیا، کوئی چیز نہیں دی، بلی مر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس عورت کے حق میں جہنم کا فیصلہ فرمایا، یہ احادیث کے اندر موجود ہے، یہ کوئی ویسے واقعات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بلی کے ساتھ بدسلوکی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جہنم کا فیصلہ فرما دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اگر آپ کا ہمارا عمل انسانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ کیا صلہ ملے گا؟ کیا بدلہ ملے گا؟ آپ اپنی زندگی کو خدمت خلق کے لیے وقف کیجئے، اور یاد رکھنا، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ رب فرماتا ہے کہ جو چیز نافع ہے، نفع بخش ہے، نفع پہنچانے والی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس چیز کو باقی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، 1866 میں بنیاد ڈالی گئی۔ آپ کے دارالعلوم کی بنیاد ڈالنے کے بعد آج تک میرے عزیزو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا نام زندہ ہے۔ تمام کے تمام مدارس اسلامیہ کے طلبہ، پڑھنے والے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا آخری سال دارالعلوم دیوبند میں لگ جائے، تاکہ ہم اپنے نام کے ساتھ، اپنے نام لکھنے کے بعد قاسم لکھنے والے ہو جائیں۔ وہ شیر امت مجاہد کہ جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 کے اندر رکھی تھی، لیکن آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن اس حجت الاسلام کا نام لکھنے کے لیے، نام لینے کے لیے دنیا ترستی ہے کہ ہمیں وہ نام مل جائے، اور دنیا بھر سے طلبہ داخلہ لینے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی زمین پر پہنچتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، نافع بنو، کام آنے والے بنو، کام آؤ گے تو اللہ باقی رکھے گا۔ اگر ہم نے فکر اپنی کی، اپنے بچے، اپنے پریوار کی فکر کی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پرندہ کہ جو صبح کے وقت گھونسلے سے نکلتا ہے، شام تک اپنے کھانے دانے کی فکر کرتا ہے، شام میں اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ ایک کتا صبح کے وقت میں بھوکا اٹھتا ہے، شام تک کھاتا ہے، شام میں آرام کرتا ہے۔ دوسری مخلوقات وہ اپنے کھانے کی فکر میں ہے، اپنے پینے کی فکر میں ہے۔ تو مجھے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر انسان کی پیدائش اور انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تو دنیا میں کمانے کے لیے آیا ہے، صبح سے لے کر شام تک کما، اور شام سے لے کر صبح تک کمانے کی فکر میں لگا رہے، تجھے کسی بیوہ کی فکر نہ ہو، ضرورت مند کی فکر نہ ہو، کسی کے کام آنے کی فکر نہ ہو، کسی کی ضرورت میں سہارا بننے کی فکر نہ ہو، تو خدا کی قسم مجھے کہنے دے، انسان تجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، رب نے تجھے بلند بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ 18,000 مخلوقات رب نے پیدا فرمائی ہے، تیرا مقام سب سے بلند بالا ہے۔ اگر تیرا مقصد بھی یہی ہو کہ جو دوسری مخلوقات کا ہے، تو جانور کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فرق یہی ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں اور لوگوں کا سہارا بنے، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے بنے، اس جذبے کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ آج کل تو معاشرہ، سماج ایسا بن رہا ہے میرے پیارو، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی وکیل بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے۔ شوق سے پڑھائیے، بنائیے، لیکن ان بچوں کو، بچیوں کو بتا دو کہ تمہیں اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے پڑھنا ہے، خدمت کرنی ہے، قوم کی سیوا کرنی ہے، معاف کرنا
मानना मेरे भाइयों, बड़ी गुस्ताखी के साथ कह रहा हूं, लेकिन दिल दुखे के साथ कह रहा हूं कि हाँ, उन डॉक्टरों से मैं जरूर शिकायत करता हूं, करता रहूंगा कि जो मरीज की जेब से मोहब्बत करने वाले मरीज के मर्ज से मोहब्बत नहीं करते हैं। मरीज पहुंचा, हॉस्पिटल में पहुंचा, जांच पर जांच, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, एक मरीज तुम्हारे पास में पहुंचा है, जज्बा ये है, दिल में उमंगे लेकर ये गया है, डॉक्टर रहम खाएगा, तरस खाएगा, पैसा नहीं है, कर्ज लेकर आया है और सूद पर लेकर आया है, घर वाली की चीज फरोख्त करके लाया है, गिरवी रख कर लाया है, लेकिन वो इंसानी शक्ल में जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद, मेरे प्यारों, मैं उन डॉक्टरों को नहीं कहता कि जो कौम की सेवा करते हैं, लेकिन हाँ, उनको जरूर कहता हूं कि जो जांच पर जांच लिखकर मरीज पर जुल्म कर रहे हैं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। शरीयत ये कहती है कि मरीज से मोहब्बत करो, तरस खाओ, शफकत करो, प्यार करो। तो हमें समाज को ऐसे अफराद देने की जरूरत कि जिनके सीनों में, जिनके दिल में खिदमत खल्क का जज्बा हो, कौम की सेवा करने का जज्बा हो। याद रखना, दुनिया से चले जाएंगे, खुदा की कसम कयामत तक नाम जिंदा रहेगा। हजरत मुफ्ती साहब मेहनत कर रहे हैं, आपने इस इदारे को कहां से कहां पहुंचाया। मुफ्ती साहब, दुनिया से आप और हम सबको जाना है, लेकिन खुदा की कसम, जब इस इदारे की तारीख लिखी जाएगी, इस इदारे की तारीख मुरत्तब होगी, और मुरत्तिब जो इस इदारे की तारीख तरतीब देने वाला होगा, वो नहीं दे सकता कि जब तक आपकी कुर्बानियां, आपकी वो तमाम जोहदे मुसलसल, उनका जिक्र ना हो जाए इस इदारे के ताल्लुक से, तब तक इदारे की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, कौम की खिदमत के जज्बे के साथ काम करो, और टेंशन हो, फिक्र हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, किसके लिए? कौम के लिए। कौम के लिए एक काम है, पैगंबर सिखा कर गए, सहाबा सिखा कर गए। आप अभी करीब में पहुंच जाइए, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ट्रेन का सफर कर रहे थे। एक गैर मुस्लिम भाई हमारा बैतुल खला में पहुंचता है, ट्रेन की बैतुल खला गंदी है, आप वहां से दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से चक्कर लगाते हुए वापस आ जाते हैं। आप समझते हैं कि ये वापस आ गया, परेशान है, परेशानी में गिरफ्तार है। तो सुनो मेरे भाइयों, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने ये बात भांप ली, और भांपने के बाद आप बैतुल खला में गए, आपने बैतुल खला साफ की, और वहां जो गंदगी गलाजत पड़ी हुई थी, आपने उसको साफ किया। साफ करने के बाद आप अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। एक बुजुर्ग आपके पास वो भी था कि जो आपको गालियां देता, आपको बुरा भला कहता, आप पर न जाने किस किस अंदाज की कीचड़े उछालता था। जब देखा शेखुल इस्लाम के इन अखलाक को, आपकी इन आदात को जब देखा, मेरे प्यारों, वो रोने लगा और कहने लगा, शेखुल इस्लाम माफ कर दीजिए, आपके ताल्लुक से ये कहता था। लेकिन वो मर्द मुजाहिद क्या कहता है? वो शेखुल इस्लाम कहता है कि मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया है, मैंने वो किया है कि जो मेरे प्यारे पैगंबर ने किया है, इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मेरे भाइयों, आपने एक यहूदी की गलाजत साफ की, मैं वो सुन्नत जिंदा कर रहा हूं, मैंने कोई नया काम नहीं किया है। तो शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने एक गैर मुस्लिम भाई के लिए सफाई सुथराई का इंतजाम किया। आप और हम ये समझते हैं
इस्लाम क्या है, और मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ। खुदा की कसम, मुसलमान बुरा हो सकता है, मुसलमान गालियां बक सकता है, मुसलमान झूठा हो सकता है, मुसलमान बदअखलाक हो सकता है, लेकिन इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम प्यार का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, और भाईचारे का मजहब है, प्यार का मजहब है। इस्लाम तो अपने मानने वालों को ये सिखाता है, बताता है, पढ़ाता है। आपके पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम भाई भी रहता है, मोहब्बत का सुलूक करो, प्यार का सुलूक करो, शफकत का सुलूक करो, प्यार से उसके साथ में रहो। ज्यादती, जुल्म शरीयत इजाजत नहीं देती। मेरे अजीजों, लोगों ने आज ये समझ लिया, मुसलमानों के आमाल, मुसलमानों की जिंदगी को देखकर ये इस्लाम है। नहीं, इस्लाम तो मोहब्बत, प्यार, शफकत और प्यार का मजहब है। इस्लाम एक जानवर, परिंदे, परिंदे, तमाम की तमाम अल्लाह की मखलूकात, उन पर जुल्म की इजाजत नहीं देता है। तो बताइए इंसानों पर जुल्म की इजाजत कैसे दे सकता है? जब मेरा प्यारा पैगंबर इरशाद फरमाता है कि बिल्ली को भूखा रखकर मार देने की वजह से जहन्नम की आग में वो खातून जली, कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता फरमा दी। तो मेरे अजीज और दीनी भाइयों, हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हमारी बदअमलियों की वजह से, हमारे सियाह कुर्तूत की वजह से ये तमाम की तमाम चीजें जो सामने आ रही है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम को समझिए, इस्लाम को जानिए, इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को पढ़ाइए और बताइए कि इस्लाम ये है। देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल के 3 नौजवानों का वाक़िया बयान फरमाया, और इमाम बुखारी ने इस वाक़िए को बयान फरमाया है कि आप तीन नौजवान, आपने फरमाया बरसात में, बारिश के मौसम में बाहर निकले, और निकलने के बाद वो एक गार में जा छिपे, वहां छुप जाते हैं। और सोचा ये था कि बारिश के खत्म होने के बाद इस गार से निकल जाएंगे, लेकिन उस गार पर पहाड़ की एक चट्टान, पहाड़ का एक टुकड़ा उस गार के मुंह पर आकर चिपक जाता है। फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, कोई ऐसा आला पास में नहीं था कि उससे निकल सकते हो। मेरे अजीजों दीनी भाइयों, उनमें के बाद ने बात से कहा, हदीस के अल्फाज हैं, क्या कहा कि अपनी जिंदगी के अच्छे अमाल को गिनाओ, शुमार कराओ, अल्लाह माफ फरमा देंगे। एक ने कहा, परवरदिगार आलम, अपने अमल का वास्ता लेकर अल्लाह से दुआ फरमाई, मौलाए करीम, मैं रात में अपने घर पर जब आता, सबसे पहले अपने वालिदैन को दूध पिलाया करता था। एक दिन ऐसा आया कि मेरी वालिदा मोहतरमा आराम फरमा रही थी, सो गई थी, मैं दूध लेकर आया। मेरे बच्चे दूध पीना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, इसलिए कि मेरी वालिदा आराम कर रही हैं, सो रही है। मैं दूध का कटोरा लिए अपनी वालिदा के सरहाने खड़ा रहा। रात का जब काफी हिस्सा गुजरा, मेरी वालिदा की आंखें खुली, मैंने वो दूध का कटोरा पेश किया, मेरी वालिदा ने दूध को पी लिया। मेरे परवरदिगार आलम, अगर मैंने ये अमल तेरी मोहब्बत के लिए किया है, तेरे प्यार की वजह से किया है, तुझे खुश करने के लिए किया है, मौलाए करीम मेरे इस अमल की वजह से इस गार के मुंह को खोल दीजिए, एक तिहाई हिस्सा खुल जाता है। एक नौजवान जिसका अपनी चचा की लड़की से इश्क हो गया, उससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहता, लेकिन उस नौजवान से उस चचाजाद बहन ने ये कहा कि मुझे जरूरत है, आप कुछ रुपये दे दीजिए। उस नौजवान ने दे दिए, लेकिन शर्त ये लगाई कि मैं तुमसे अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो चूंकि जरूरतमंद थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। जब वो
जब वो कादिर हो गया, अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी चाहता था, उस नौजवान से उस खातून ने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ खा। उस खातून ने समझा, उस खातून ने ये जाना कि एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला का वास्ता देकर, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर कहो अल्लाह से डर, वो नौजवान हट जाता है, दूर हो जाता है और ये कहता है कि जाओ, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और जो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे वो भी तुम्हें छोड़ दिए, मैं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मैंने अमल किया। तो वो अपने इस नेक अमल का वास्ता अल्लाह तबारक व तआला से लेकर दुआ करता है, बारी ताला अगर मैंने ये अमल तेरी मोहब्बत के लिए किया है, तेरे प्यार के लिए किया है, तुझे राजी करने के लिए किया है, तो इस खार के मुंह को खोल दे। अल्लाह तबारक व तआला गार के मुंह को खोल देते हैं, एक तिहाई हिस्सा खुल जाता है। तीसरा ये कहता है कि मेरे पास एक मजदूर मजदूरी करता, वो एक दिन मजदूरी लिए बगैर चला गया, उसकी कुछ मजदूरी मेरे पास में रही, मैंने उसकी मजदूरी को तिजारत में लगा दिया, न बकरी जानवर खरीद लिए, और खरीदने के बाद जब वो मेरे पास में आया, वो कहता है कि मेरी मजदूरी दो। तो मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, उस अल्लाह के शेर ने, अल्लाह के बंदे ने कहा जितने जानवर यहाँ चर रहे हैं ये तमाम के तमाम तुम्हारे हैं। वो कहता है क्या मजाक कर रहे हैं? फरमाया नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपकी मजदूरी से, आपके उन पैसों से जो आप मुझ पर छोड़ कर गए थे, मैंने तिजारत में लगा दिए, और तिजारत में लगाने के बाद अल्लाह ने ये माल बढ़ा दिया है, और मैंने ये अमल अल्लाह के लिए किया है, जाओ तुम्हारी है। वो अपने उस अमल की, वो अमल का वास्ता लेकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, मौला अगर वो अमल तेरे लिए मैंने किया है, परवरदिगार आलम इस गार के मुंह को खोल दे। गार के मुंह को खोल दिया जाता है। वो तीनों नौजवान उस गार से निकल जाते हैं। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी में कोई अमल ऐसा है कि अगर हम किसी मुश्किल में फंस जाएं, किसी परेशानी में फंस जाएं, अल्लाह से दुआ मांगकर उस अमल का वास्ता देकर हम कहें मौला हमने एक नमाज तेरी मोहब्बत के लिए पढ़ी थी, तुझे खुश करने के लिए पढ़ी थी, ए मौला मैं फुला की जरूरत में काम आया था, मकसद कुछ नहीं था, सिर्फ ये था ए अल्लाह तुझे खुश करना चाहता हूं। इस मकसद के जज्बे से, इस मकसद को पेश नजर रखते हुए मौला करीम मैं उसका सहारा बना हो, परवरदिगार आलम मेरे उस सहारा, उस अमल की वजह से मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को खिदमत खल्क में लगाओ। अल्लाह ने जो टाइम दिया है, फुर्सत दी है कि जो आज हमारे माशरे और समाज में जहालत का बोलबाला है और बददीनी का बोलबाला है, तमाम की तमाम चीजें आज हमारे माशरे और समाज की जीनत बनी हुई है। आप खिदमत खल्क के जज्बे के साथ उठिए और समझाइए, शराबियों को समझाइए, सटैल्सियों को समझाइए, अय्याशों को समझाइए, और ये जो शादियों में गाना बजाना कर रहे हैं और डीजे बजा रहे हैं, पटाखे पटका रहे हैं, न किसी बीमार पर तरस, न किसी मजदूर पर तरस, न किसी बड़े पर तरस, न किसी अल्लाह के नेक बंदे पर तरस, धड़ल्ले से जो जुल्म किया जा रहा है। मेरे भाइयों, खिदमत खल्क के जज्बे के साथ इनको समझाइए, इनको रोकिए, इनको बताइए। आप प्यार से, मोहब्बत से ये काम करेंगे और अल्लाह के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका बदला, उसका सिला अता फरमाएगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, इस जज्बे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जमींदार भी
ठेकेदार भी, फैक्ट्रियों का मालिक भी, साहिबी सरवत भी, और अल्लाह ताला ने जिनको दरमियाना माल अता फरमाया है वो भी करें, और जो वैसी समाजी लोगों की खिदमत कर सकते हैं वो भी करें। एक लम्हे के लिए न जाने ये कहां से आ जाते हैं, कहां से मेरे पास तोड़ आते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है। लोग जरूरत लेकर तुम्हारे पास आते हैं, लोग परेशानियों में तुम्हारे पास आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब इसका अजर अता फरमाएंगे, इसका बदला और सिला अता फरमाएंगे, उस वक्त में मालूम हो जाएगा कि आपने कितना बड़ा काम किया। साहबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी देखिए, कुरान उतर रहा है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, तरजीह दे रहे हैं, भूखे हैं, भूख की हालत में भी खैर दूसरों को तरजीह दे रहे हैं। मेरे अजीजों, दीनी भाइयों, एक भूखा नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। आपके घराने में भी कुछ नहीं कि कुछ खिलाया जाए। साहबा से मालूम किया कि कौन है कि जो इनको खाना खिला सकता हो शाम का। तो एक साहबी रसूल खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं खाना खिलाऊंगा। घर पर ले जाते हैं, बीवी से पूछते हैं खाने के लिए क्या है। फरमाया कि सिर्फ बच्चों के खाने का इंतजाम है, फालतू कोई इंतजाम नहीं। फरमाया इमामुल अंबिया के मेहमान हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजे हैं। तो फरमाया क्या किया जाए बताइए। कहा कि आप ऐसा कीजिए, जब दस्तरखान लगाया जाए, ये डिबिया जल रही है, आप मेहमान को खाना खिलाएं, और सिर्फ इतना खाना है कि मेहमान खा सकता है। आप उस वक्त में डिबिया को किसी बहाने से बुझा देना, वो जो डिबिया जल रही है उसको बुझा देना। मेरे अजीजों दीनी भाइयों, उस खातून ने यही किया। मेहमान ने खाना खा लिया, पेट भर गया, लेकिन वो साहबी रसूल और आपके शरीके हयात, आपके तमाम बच्चे रात भर भूखे रहे, लेकिन मेहमान को खाना खिलाया। वो नबी का मेहमान था, नबी का मेहमान था। और मेरे अजीज और दीनी भाइयों, वो प्यारे सहाबी थे जिनकी जिंदगी में इशार, जिनकी जिंदगी का हिस्सा इशार था। ये आपकी खास सिफात थी। आप सुनिए, आप मैदाने कारजार में हैं, जख्मी हैं, 3 सहाबी पानी लेकर आए। पहले सहाबी के पास पानी पिएंगे, कहा कि हाँ पानी पीना चाहता हूं। बराबर से ऐसा महसूस हुआ कि आवाज आई पानी की, जख्मी पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, ये कहा कि मुझे नहीं, अगले वालों को पिला दीजिए। जब वहां पहुंचे पानी लेकर, ऐसा महसूस हुआ कि पानी की आवाज आई, कहा आगे चले जाइए, इशारा कर दिया। तीसरे अल्लाह के शेर के पास पहुंचते हैं, और जैसे पहुंचे वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जामे शहादत नौश फरमा लेते हैं। फिर दूसरे सहाबी के पास पहुंचे, उनका भी इंतकाल हो जाता है। सबसे पहले जिसके पास पहुंचे थे उनका भी इंतकाल हो जाता है। तीनों प्यासे दुनिया से चले गए, लेकिन आप जख्मी हैं, जख्म खाए हुए हैं। उस हालत के अंदर भी इशार का आलम यह है कि मेरे भाई को पानी मिल जाए, मेरा भाई पानी पी ले, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। ये इशार था उस वक्त में कि जब प्यास की वजह से तड़प रहे थे। और इसी तरह मेरे भाइयों, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको शहीद किया गया, दर्दनाक शहीद किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपके करीब पहुंचे, आपको बड़ी तकलीफ हुई, और आप तकलीफ का मेरे भाइयों, आपके दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। आपने जब ये देखा मेरी फूफो हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा
भाई के पास आ रही है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जुबैर से कहा कि जाओ अपनी वालिदा को रोक लो, इसलिए कि वो कमजोर दिल की हैं। अपने भाई को इस हालत में देखकर कि नाक कटी हुई है, कान कटे हुए हैं और सीना चाक करके आपके दिल को निकाल लिया गया है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मेरे प्यारो, आपने फरमाया कि मेरी फूफो को रोक लीजिए। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा तोड़ रही थी और जब आपके लख्ते जिगर हजरत जुबैर ने रोकना चाहा तो बहादुर खातून थी, एक मुक्का मारा, पीछे हट जाओ। लेकिन क्या कहा, फरमाया इमामुल अंबिया ने हुक्म दिया है कि मेरी फूफो को रोक दीजिए, वो न जाए। वही रुक जाती है और रुकने के बाद आपने 2 कपड़े दिए कि मेरे भाई को इन 2 कपड़ों में कफन दे दीजिए। मेरे अजीजों, दीनी भाइयों, हजरत सफिया देखकर रुखसत हो जाती है, लेकिन हजरत सुहेल रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो अल्लाह का शेर, वो भी वही मौजूद थे। कफन देने के लिए कपड़ा नहीं, 2 कपड़े थे, एक छोटा था, एक बड़ा था। अब क्या किया जाए, छोटे में किसको कफन दिया जाए और बड़े में किसको कफन दिया, बड़े से किसको कफन दिया जाए। कूड़ा डाला गया, हजरत सुहेल के हिस्से में बड़ा कपड़ा आया और हजरत हमजा के से हिस्से में छोटा कपड़ा आया। उस वक्त में कि जब बहन अपने भाई के लिए दुनिया से रुखसत हो गए हैं, दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, कफन के लिए कपड़ा लेकर आई। 2 कपड़े थे, उनमें भी कूड़ा डाला गया कि एक उसको दे दिया जाए, एक उनको दे दिया जाए। आपका सर ढांपा जाता, पैर खुल जाते, पैर ढांपे जाते, सर खुल जाता, लेकिन आपके सर को ढांप दिया गया और पैरों पर पत्ते, दूसरी चीजें डाल दी गई। देखो, अल्लाह का वो शेर मैदान के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उस वक्त में भी सहाबा का हाल क्या है, इसार का हाल क्या है। आज आप और हम हैं, उम्दा किस्म के कंबल, लिहाफ, बेड, गद्दे, हमें सब चीज वीआईपी चाहिए, लेकिन तेरे पड़ोस में एक बेवा रहती है, यतीम बच्चे रहते हैं, उनके पास फटा हुआ लिहाफ कंबल है, तेरा जमीन तुझे नहीं झंझोड़ता है कि ये सर्दी का वक्त है, सर्दी का जमाना है, तू अच्छे कंबल में है, अच्छे लिहाफ में है, लेकिन वो बेवा जिसका सहारा दुनिया से चला गया है कि तू उसको 1000 या 1200 का एक कंबल दे दे, उसमें तेरे पास गुर्बत नहीं आएगी। और मुसलमान की कोई खुसूसियत नहीं, आपके पड़ोस में गैर मुस्लिम रहता है, गैर मुस्लिम बच्चे रहते हैं, इस्लाम तो ये सिखाता है आप उनको भी दिए, उनको भी दीजिए, अल्लाह इससे खुश होंगे, अल्लाह को अमल पसंद आएगा। लेकिन क्या करें मेरे भाइयों, जमाना, माहौल, हालात नफ्सी नफ्सी पुकार रहे हैं। जो कयामत में नफ्सी नफ्सी होगी, दुनिया में हो रही है। हर इंसान को अपनी फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है, न पड़ोस की फिक्र, न इलाके की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, न बड़ों की फिक्र। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में खिदमत खल्क का जज्बा पैदा फरमाए, खिदमत खल्क का अल्लाह जज्बा पैदा फरमाए। वाखिर दावाना, चूंकि हम सबके मोहसिनो करम फरमा और दिल्ली से तशरीफ लाए हजरत मौलाना मुफ्ती तालिब साहब, बड़ा आपका कीमती बयान होगा और ये समझिए कि हमारे इस इजलास का बहुत कीमती बयान हजरत का है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए और जो बातें कही गई हैं अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।